السلام علیکم، این نیوز کے ساتھ میں ہوں نمرہ احمد اور میں ہوں انم شیخ۔ شامل کریں گے اہم ہیڈ لائنز۔ آر پی او ساہیوال طیب حفیظ چیمہ نے این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈکیتی اور چوری کے 97 مقدمات ٹریس کیے گئے، جن میں 139 ملزمان گرفتار ہوئے۔ 53 لاکھ سے زائد نقدی اور 1 کروڑ 84 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ عمران عرف مانی گینگ سرغنہ سمیت گرفتار 5 لاکھ سے زائد مالیت کا مال برآمد کیا گیا۔ رازدنی سرکہ وہیکل گاڑی چوری، موٹر سائیکل چوری، ٹریکٹر چوری، مویشیان کی چوری کے 100 کے قریب مقدمات ہم نے ٹریس کر کے ہم نے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ 100 مقدمے، 139 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان مقدموں میں، اور 53 لاکھ سے زیادہ کر کیش نقد پیسے برآمد کیے ہیں ان ملزمان سے ہم نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مین گینگ ہے عمران عرف مانی ڈکیت گینگ، اس کا سرغنہ بھی گرفتار کیا ہے۔ 5 لاکھ مالیت کے 3 جانور ہیں، وہ بھی ہم نے برآمد کیے ہیں۔ کل ٹوٹل ملا کر جس میں 22 موٹر سائیکلیں ہیں، 3 کاریں ہیں، 1 ٹریکٹر ہے یہ جو سامنے کھڑا ہے، 1 ڈالا سامنے کھڑا ہے، بھینسیں، بچڑے، بیل، یہ جو لوگوں کی چیزیں، یہ جو ناشور یہ جو چرا کر لے گئے، اور انتہائی ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ یہ لوگوں سے اس طرح کی وارداتیں ہوئیں۔ اس کے اندر فصلیں بھی ہیں، مکئی بھی ہے، موٹریں بھی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، طلائی زیورات ہیں۔ ساہیوال کو، صادق بلوچ کو، کہ انہوں نے یہ ایک زبردست کام کیا ہے۔ یہ سلسلہ اب آج پہلا قطرہ ہے بارش کا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ پہلے بھی کام کر رہی تھی ٹیم ان کی، یہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ مزید تیزی کے ساتھ ہی آگے بڑھے گا۔ میں ہر ضلع میں جاؤں گا، وہاں اس طرح کے پروگرام کریں گے۔ سائیکل خریدا کسوال تھانے والے نے لب دیتا، بڑی مہربانی، اس کو میں بہت خوش ہوں جی۔ تھانہ فری ٹاؤن کی پولیس نے ہماری گاڑی ریکور کروائی ہے، وہ آر پی او صاحب اور ڈی پی او صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں۔ پولیس نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کی ہے، اور اس سارے کوآپریشن کی وجہ سے آج جو ہے ہماری گاڑی ہمیں ملی۔ ہمیں 16,40,000 روپے کی ریکوری کر کے دیتی انہوں نے۔ میں جناب بہت مشکور ہوں تھانہ ڈیرہ رحیم دا، جنہوں نے میری باج 22 دنوں کے وچ برآمد کر کے مینوں فون کر کے گھرے منگا کے دیتی۔ جی میری کار چوری ہوئی تھی 1 مئی کو، اور 4 دن کے بعد تھانہ سٹی ساہیوال نے برآمد کر کے مجھے واپس دی ہے، جس کے لیے میں تمام عملے کا شکر گزار ہوں۔ پاک پتن شریف موسمی تبدیلی کے حوالے سے عوام کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر ڈاکٹر منظور احمد کھرل نے حسن عباس بخاری سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں حسن عباس بخاری کی اس رپورٹ میں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں الصحت سینٹر آراوالا میں، میرے ساتھ آراوالا کے معروف ڈاکٹر منظور احمد کھرل صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ موسمی تبدیلی کے ہوتے ہوئے یہ جو مریضوں میں مبتلا مرضیں ہیں، اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر منظور احمد ہے اور میں آراوالا پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو بیماریاں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں، خاص طور پر گرمی کا موسم ہو تو پیٹ کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ میرا مریضوں کے لیے اور عام آدمیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ پانی ابال کر پئیں، پھٹے پھل جو عموماً بازار میں ریڈیوں پہ ملتے ہیں وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ آپ پھل سبزی بازار سے خرید کر لائیں، ان کو اچھی طرح دھوئیں، صاف کریں، پھر انہیں ابال کر اور اچھی طرح پکا کر کھائیں، اور جو ہے رفع حاجت کے بعد ہاتھ صابن سے اچھی طرح کریں۔ صفائی ویسے بھی الحمدللہ ہم مسلمان لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو جو چیزیں ہم صاف ستھری کرتے رہیں گے جس میں بیماریاں ہونے کی کم سے کم چانس ہیں۔ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول بہاری کالونی چونیا میں بچوں کی کارکردگی پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چونیا سے نمائندہ این نیوز عمران اشرف سے۔
जी बिल्कुल, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल भारी कॉलोनी चुनिया में बच्चों की अच्छी इम्तिहानी कारकर्दगी पर शानदार तकरीबात का आगाज़ किया गया। तकरीबात का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट साबका पंजाब बार कौंसल राणा मोहम्मद सईद अख्तर एडवोकेट, मरकज़ी प्रेस क्लब के बानी सीनियर साफ़ी मोहम्मद अशरफ मौला, मेहमान ख़ुसूसी साबका कौंसलर राणा सत्तार, अब्दुल हमीद पप्पू, चौधरी तफ़ैल, खालिद एडवोकेट, सगीर अहमद और फ़याज़ नवाज़ एडवोकेट ने भी शिरकत की। हेड मास्टर मियाँ अज़ीमुल्लाह और उनके स्टाफ ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा ने बहुत ही अच्छी लगन से तैयारी की और 100% नंबर हासिल किए। इसके साथ उस्तादा ने भी तलबा की किरदार साजी में अहम किरदार अदा किया। बच्चों की अच्छी कारकर्दगी पर सीनियर साफ़ी मोहम्मद अशरफ मौला ने बच्चों को इनामात तकसीम किए। साबका पंजाब बार कौंसल राणा सईद अख्तर एडवोकेट ने बच्चों की अच्छी कारकर्दगी पर हेड मास्टर मियाँ अज़ीमुल्लाह, सीनियर स्कूल टीचर शेख फ़रूक ज़फ़र, मंजूर हुसैन, राना नदीम अख्तर, शफीक शाह और तमाम टीचर को खराज तहसीन पेश किया। जी ओकाड़ा के नवाही गांव के हेडमास्टर मलक नईमुल्लाह ऐवान ने PhD मुकम्मल कर ली। राव इमरान रशीद ने उनके एजाज़ में अशाइया का अहतमाम किया। इलाके की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद दी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद की आवाम के लिए कामरान लियाकत सिकंदर रूफी की जानिब से राजपूत पेट्रोलियम सर्विस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी दुआ मौलाना मोहम्मद अली शाह ने कराई। तकरीब के मेहमान खसूसी MPA नदीम अहमद सिद्दीकी, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अदील अहमद सिद्दीकी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स नायब सदर अवैस खान, नायब सदर सिकंदर राजपूत, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, इमरान रशीद, शरीफ चौहान, नासिर अली, आबिद कादरी और उलमा कराम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हर तरफ अफरा तफरी है पूरे मुल्क के अंदर, मुआशी बहरान है। उसमें मैं समझता हूँ कि यह लतीफ़ाबाद हैदराबाद के अंदर ये एक रोज़गार, कई लोगों को, नौजवानों को इससे रोज़गार मिलेगा माशाल्लाह। फिर हैदराबाद में जिला लतीफ़ाबाद, यहाँ पर ये राजपूत कौम का इफ्तिताह हुआ है। लेकिन इलाके के हैदराबाद के मकीनों को इससे बड़ी सहूलतें मिलेंगी और फिर कई रोज़गार के मौके होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इसको हैदराबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए तरक्की और उन्नति का सबब बनाए और अल्लाह ताला हैदराबाद को सलामती अता फरमाए और अल्लाह पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए और इनके रोज़गार में अल्लाह अपनी गैब से मदद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज राजपूत का जो इफ्तिताह हुआ है उसमें आज इस काम की इफ्तिताह जो है मौजूद है और बड़ी खुशाइन बात है कि हैदराबाद में खसूस लतीफ़ाबाद में जो पेट्रोल पंप्स की जो है वो अशद ज़रूरत है, उसमें ये एक इजाफा और वो भी 2 कंपनी जो एक वर्ल्ड वाइड बड़ी मतलब अच्छी कंपनी कहलाई जाती है, वो हमारे यहाँ ख़ासतौर पर लतीफ़ाबाद में उनका पहला, बल्कि हैदराबाद में पहला पंप और वो भी स्पेशली लतीफ़ाबाद में आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके जो पेट्रोल है, इनका जो एक सिस्टम है लोगों का, वो उससे हैदराबाद के और ख़ासतौर पर लतीफ़ाबाद के लोगों से बात हासिल है। मेरी दुआ है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लतीफ़ाबाद के लिए। 6 नंबर के अंदर ये जो पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया गया, सबसे पहले तो मैं इनके लिए दुआ कहूँ कि इनको रात दुगनी, अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए अल्लाह ताला और इनको खूब बरकतें अता फरमाए। दूसरा देखें तो हमेशा कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये अगर हमारे हैदराबाद में आएगी तो उसी हिसाब से हमारा हैदराबाद तरक्की करेगा। और जो हालात आजकल मुल्क के हालात हैं, आजकल नया सरमाएकारी ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, तो ये बहुत खुशाइंद है और मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा इक़दाम उठाया, इन्वेस्टमेंट की हमारे शहर हैदराबाद के अंदर। हैदराबादी हैं बेसिकली, लेकिन बात यह है कि इनके पास एक इन्वेस्टर के पास चॉइसेस बहुत होती हैं कि वो पैसे कहाँ लगाए और बेस्ट कर लिए, तो उन्होंने हैदराबाद को चुना। इसका मतलब जिस तरह से हम पहले भी कहते रहे और आज भी कहते रहेंगे कि हैदराबाद इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो मैं इन जैसे लोगों को और लोगों को भी दावा देता हूँ कि हैदराबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, पेट्रोल पंप के ऊपर नहीं, जो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैदराबाद में लेकर आए और करें।
करें ताकि हमारे हैदराबाद तरक्की की राह पे गामजन हो सके। जो बहुत ज़्यादा सूरत हाल में अभी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ अपना साबिर भाई और नदीम भाई का। लतीफ़ाबाद का हर एक रोड तामीर हो गया। ये जगह रोड जब तामीर होते हैं तो इससे एक इकनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ती है और ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा मायने रखता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी तंजीम एमपीएम का भी, पाकिस्तान का भी, जो जिस तरह से ये काम कर रही है। और मैं कामरान भाई और रज़ी भाई को फिर एक दफ़ा मुबारकबाद देना चाहूँगा और अल्लाह ताला। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चिन्योट में भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की याद मनाई जा रही है। इसी हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों और मजलिसों का अहतमाम भी किया गया। 18 जेठ को करबला में इमाम आली मुकाम और उनके प्यारों को प्यासा शहीद किया गया। इसी हवाले से चिन्योट शहर और गिरदोनवा में शहरी व समाजी हलकों की जानिब से सबीलों का अहतमाम किया गया है, जबकि शयान हैदर करार की जानिब से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मजालिस भी मुनक्किद की गई। कबीरवाला पंजाब फूड अथॉरिटी की नवाही इलाके सराय सधू में बड़ी कार्रवाई। मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा, 600 लीटर जाली दूध बरामद। फूड अथॉरिटी की मिलावट शुदा दूध तलब करके 20,000 जुर्माना कर दिया। शुएब जदौन ने कहा कि मिलावट माफिया के खिलाफ और मिलावट शुदा अशिया की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अवाम दूध की मुफ्त टेस्टिंग के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी के दफातर तशरीफ लाएं। सियालकोट के नवाही इलाके गवर्नमेंट हाई स्कूल गोदपुर से भागकर खम्बरा वाला नहर अपर चनाब कैनाल में नहाते हुए 2 तालिब इल्म डूब कर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ने लाशें निकाल ली। जाँ बहक होने वालों में 15 साल उमर और 14 साल हारून बताया गया। मुख्तलिफ महकमों में तफ्तीश के अमल को जदीद साइंसी खतूत पर सवार करने के लिए फोरेंसिक साइंस के हवाले से ज़िरई यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में 7 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद तफ्तीश के पुराने तरीक़ाकार के बजाय जदीद साइंसी तरीक़ों से तफ्तीश यानी फोरेंसिक के तरीक़ों से काम करने को अपनाना शामिल है। वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए वाइस चांसलर ज़िरई यूनिवर्सिटी मंसूर इलाही बाबर ने कहा कि जब भी कोई हादसा या क्राइम हो जाता है तो क्राइम को कंप्यूटर फोरेंसिक साइंस के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि फोरेंसिक साइंस के हवाले से सबको ट्रेन कर दें। ये तकरीबन 2 महीने पहले भी हमने फोरेंसिक साइंस के बारे में, ताकि डॉक्टर हजरात की और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिसमें आर्मी, पुलिस और वकला हजरात हैं, उनके लिए हमने ये पहले भी की थी, लेकिन इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ जिसमें एबटाबाद यूनिवर्सिटी, स्वाबी और मर्दान और बाकी यूनिवर्सिटी वालों ने फिर कहा, और मेडिकल कॉलेज वाले, गोमल मेडिकल कॉलेज वालों ने कहा कि भाई ये दोबारा करें। बेसिकली जब भी कोई हादसा होता है, क्राइम हो जाता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ये साइंटिफिक लाइंस पे होनी चाहिए। पहले जो है वो हम खोजी रखते थे, कोई कुत्ते रखते थे, वो उसका सुराग लगाते थे, लेकिन अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, पैथोलॉजी, एम्यूनिशंस, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का इस्तेमाल और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारी इतनी जदीद साइंस हो गई कि पंजाब ने तो इस पर एक सेपरेट बिल्कुल फोरेंसिक एजेंसी बना ली है, जहाँ पे रोज़ाना के थाउजेंड्स ऑफ केसेस सॉल्व किए जाते हैं। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने किया। अभी तक केपी में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं, लेकिन हमारे पास क्योंकि मैन पावर ट्रेंड है, तो हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा को, टीचर्स को, स्टाफ को, वकला को, यहाँ तक कि हम चाहते हैं कि जजेस हजरात को भी हम ट्रेन करें, ताकि वो आइंदा डिसीजन करते हुए जो ये साइंस है इसकी कितनी पावर है और ये कोई भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने और उसको सॉल्व करने में इसकी मदद ली जा सके। तो हमने ये सारा अरेंज किया है। आज पहला दिन है, इसकी ओपनिंग हुई है। डीन गोमल मेडिकल कॉलेज ने ये हमारी चीफ गेस्ट थी। परसों हमें स्वाबी की वाइस चांसलर भी आ रही हैं। मकसद ये है कि हम तलबा को और स्टाफ को तैयार करें ताकि वो फोरेंसिक साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस को समझें और उसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी क्राइम जो हो, कोई भी हादसा हो, उसका एनालिसिस करना और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और उससे जो सही कल्प्रेट लोग हैं उन तक पहुंचने के तमाम अलूम के बारे में हम सिखा रहे हैं। तो पंजाब से ज़्यादातर और इस्लामाबाद से हमारे साइंटिस्ट, रिसोर्स पर्सन हैं जो इस वर्कशॉप को हमें लोगों को लेक्चर दे रहे हैं।
लेकिन इस वर्कशॉप में एक सबसे जो ज़्यादा खसूसियत है कि तमाम थ्योरी के लेक्चर्स के साथ साथ 2-2 घंटे के प्रैक्टिकल्स भी साथ है और हर ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस पे प्रैक्टिकल काम भी साथ साथ जारी है ताकि लोगों को करके दिखाया जाए। ताकि आज हमने पहली दफ़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विज़िट किया और ये बहुत मुतासिर कुन था कि यहाँ के जो वीसी साहब हैं उनकी काविशें साफ नज़र आ रही थी। फोरेंसिक के बारे में हमारे डॉक्टरों का अपना नॉलेज भी बहुत कमज़ोर होता है। जैसे मैंने आपको बताया उसमें कि हमारे डॉक्टर भी MBBS करके आ जाते हैं और फ़ौरन जब वो जॉब पे लगते हैं तो फोरेंसिक के से रिलेटेड जो मसले मसाइल सामने आते हैं उसको वो डॉक्टर कोप अप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक नॉलेज या जेनेटिक डिटेक्टिंग के बारे में कोई काविश कर रही है तो अगर वो मेडिकल कॉलेज के साथ लिंक अप हो जाता है तो ये हमारे डॉक्टरों के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं VC साहब प्रोफेसर मसरूर की काविशों से बहुत मुतासिर हुई और ये उनकी बड़ी ग्रेटनेस है कि वो इतने दूर से दूसरे सूबे से होकर भी हमारे इलाके के लिए जो काफ़ी पसमानदा है और इन चीज़ों जो डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं और जो रिसर्च का काम है उसमें हमारा ज़िला बहुत पीछे है। तो उसमें अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है और मेहनत कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। सिर्फ हमारे मेडिकल के प्रोफेशन या एग्रीकल्चर के प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि ये पूरे ज़िले के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। N न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए N न्यूज़। शुक्रिया।